Hello everyone, how are you all? I hope all are doing absolutely great and amazing, and you all are stay at home. And our today's video topic will be the third part of radioactivity. We will already read about the introduction of radioactivity, alpha decay, beta decay, and today we will know about gamma decay. So, what is gamma? What is gamma? Gamma is nothing but an electromagnetic wave. Electromagnetic wave. Everyone can know that what is an electromagnetic wave? Yes, electromagnetic wave is a wave which has no need to any medium to propagate. So this type of wave is a gamma. Gamma is an electromagnetic wave. So that is the first point. Second point is, what is the speed of gamma? Yes, that also the important thing. What is the speed of gamma? The speed of gamma is 3 into 10 to the power 8 meters per second. Yes, this is the speed of light. The speed of gamma and the speed of light are same. Both are same, 3 into 10 to the power 8 meters per second. Now, what is the mass of gamma and charge? Yes, mass is 0. And what is the charge of gamma? Yes, charge. What is the charge of gamma? Charge is also be 0. So first point that we will read, that is gamma is an electromagnetic wave. What is the speed of gamma? That is 3 into 10 to the power 8 meters per second square. What is the mass? That is 0. Charge also be 0. These are the 4 points of gamma. Now let's move on to the when gamma emit, when gamma decay, when gamma emit. Okay, they have a nucleus. Now this nucleus will be emit an alpha particle. This nucleus will be emit a alpha particle. When the nucleus emits the alpha particle, then this nucleus will be going to the excited stage. Excited stage. Okay, now see that diagram. This is the ground stage, and this is the excited. When a nuclei emit a alpha particle और बीटा पार्टिकल, इट विल बी मूव. एक साथ अल्फा और बीटा नहीं छोड़ सकता. अगर सिर्फ अल्फा छोड़ेगा या फिर सिर्फ बीटा छोड़ेगा, तो अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल इसने छोड़ा, फिर ये इट विल बी मूव मेक एक्साइटेड. इट विल बी इन एक्साइटेड स्टेट. ये क्या हो जाता है? एक्साइटेड स्टेट पे पहुंच जाता है. कितने टाइम के लिए? फॉर द टाइम ऑफ 10 to the power minus 10 सेकेंड्स. टाइम भी आपको याद रखना पड़ेगा. फॉर द टाइम ऑफ 10 to the power minus 10 सेकेंड्स. तो मैंने बोला व्हेन अ न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई emit alpha particle, when a nuclei emit alpha particle or beta particle, it gets excited to a higher energy level. ये excited होता है, एकदम excited to a higher energy level. Higher energy level. अब ये कितने टाइम के लिए होता है? 10 to the power minus 10 सेकेंड्स. ये आपको याद रखना पड़ेगा. 10 to the power minus 10 सेकेंड्स. यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ उसको. 10 to the power minus 10 सेकेंड्स. अब जब ये एक्साइटेड स्टेट पे चला जाता है तो ये अनस्टेबल हो जाता है.
मैंने पहले ही बोला था कि ये अनस्टेबिलिटी, ये स्टेबल होना चाहता है, इस एनर्जी को ये बाहर करना चाहेगा। तब इसके बीच से व्हेन अ पार्टिकल इन अ एक्साइटेड स्टेट एंड विथ अ हाई एनर्जी, यहाँ पे मैंने बोला है टू अ हायर एनर्जी लेवल, जब ये एक्साइटेड हो जाता है तब ये हायर एनर्जी लेवल पे पहुँच जाता है, तब क्या होता है, तब इसके बीच में, इस न्यूक्लियाई के बीच से एक रेडिएशन निकलता है जिसका फ्रीक्वेंसी है, द फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, the frequency of the energy level, that is F is equals to En2 minus En1 by H. This is the frequency. This is, I will write here the ground level as a N1 and the excited level, excited state is N2. That is ground N1 and excited N2. When यहाँ पे उसका एनर्जी लेवल ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे कम, इसलिए मैंने N2 माइनस N1 इंटू डिवाइडेड बाई H इज इक्वल्स टू HF, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी उसका क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस, जब वो एक्साइटेड, हाईली एक्साइटेड स्टेट में होता है, वो एमिट करता है एनर्जी, उस एनर्जी का फ्रीक्वेंसी है ये। अब यही फ्रीक्वेंसी वाला चीज़ ही तो गामा है, यही तो गामा है, यही तो गामा एमिशन, इस फ्रीक्वेंसी वाला चीज़ क्या है, गामा है। अभी तक जो मैंने बोला एकदम धीरे से बोला, समझाया, क्लियर है? आई थिंक आपको क्लियर है। इसका ये ऑलमोस्ट 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ऑलमोस्ट 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत ज़्यादा। तो कितना एनर्जी बढ़ा वो हम कैसे निकाल सकते, एनर्जी बढ़ा कितना, N2, एनर्जी एट N2, एनर्जी एट N2 वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। उससे अगर हम एनर्जी एट N1 माइनस कर देंगे तो हमारा जो है कितना एनर्जी निकला, वो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बताया और यहाँ पे एनर्जी कितना निकला हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो बोर्ड को मिटा लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक। और ये जो एनर्जी है ना, देख लेते चलो, ये जो एनर्जी है वो इक्वल्स टू है HF, वो एनर्जी HF के बराबर है, इज इक्वल्स टू HF। यहाँ पे एनर्जी जो है ये HF के बराबर है, इसलिए फ्रीक्वेंसी जो लिखा है मैंने En2 माइनस En1 डिवाइडेड बाई H, यही गामा है, इस फ्रीक्वेंसी लेवल का चीज़ है गामा है, ओके। अगर यहाँ पे मैं एक चीज़, हाँ हेलो, ओके, देखो ये जो है ये एक्साइटेड स्टेट में था, फिर वो ने गामा को एमिट किया, फिर ये ग्राउंड स्टेट में चला आया, और यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं। मान लो कोई भी AZ अल्फ़ा पार्टिकल छोड़ता है, यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल छोड़ता है, फिर ये जो डॉटर न्यूक्लियाई है वो एक्साइटेड हो जाता है, और यहाँ पे ये देखो, अगर ये है, ये डॉटर न्यूक्लियाई को मैंने पैरेंट न्यूक्लियाई लिखा है, और वहाँ से गामा एमिट हो, यहाँ से गामा एमिट होगा, तो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट से ये गामा एमिट होकर ये ग्राउंड स्टेट में आएगा। ये कोई बड़ी बात, कठिन बात नहीं है, एक सिंपल सा लॉजिक है। देखो ये हमारा पैरेंट न्यूक्लियाई, यहाँ से अल्फ़ा निकला, और यहाँ पे जो बचा, ये कौन सा बचा, डॉटर न्यूक्लियाई, ये एक्साइटेड स्टेट में रहेगा, फिर यहाँ पे ये गामा को एमिट करके ग्राउंड स्टेट में आएगा। मैंने जो बोला पूरा क्लियर है, ओके। कि गामा का जो है वजन 0, इसका जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो सबसे हाई है, इट हैज़ अ हाई पेनिट्रेटिंग पावर। इसका जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो सबसे ज़्यादा है, इसका पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा है। और इसके अंदर और कुछ आयोनाइजिंग पावर, इसके पास तो चार्ज ही नहीं है, तो आयोनाइजिंग पावर जो है, आयोनाइज करने का पावर, पावर लो है, सबसे कम है। सबसे ज़्यादा था अल्फ़ा में,
फिर उसके बाद बीटा में फिर यहाँ पे एकदम कम, बिकॉज चार्ज ज़ीरो है तो लोगों को कैसे चार्ज देगा? अगर मेरे खुद के पास चार्ज ज़ीरो है तो मैं लोगों को कैसे चार्ज दूंगा? अगर मेरे पास पैसे ही नहीं है तो मैं लोगों को कैसे पैसे दूँ? ये तो चीज़ है ना। यहाँ पे इसका चार्ज ज़ीरो है इसलिए इसका आयोनाइजेशन पावर भी कम है, बिकॉज वो तो चार्ज नहीं दे सकता किसी को। क्लियर है? तो ये था पूरा बात अबाउट गामा डीके, और कुछ नहीं इसके अंदर। आई होप दिस वीडियो, ये जो टॉपिक मैंने पढ़ाया ये क्लियर है। इफ इज इट क्लियर देन थैंक यू, बाय बाय, सी यू, टेक केयर योरसेल्फ, stay motivated, stay safe, stay at home. If are you liking the video then please share to friends and don't forget to subscribe the channel. Bye bye, take care.